Let's start by defining what is a vector. Vector. A simple definition of a vector is nothing but it is a vector. It is a quantity. What is a vector? Vector is basically a quantity which has magnitude and direction. What is vector? Vector is nothing but it is such a quantity which has magnitude and direction. Vector के पास दो चीजें होती है, very important for us to remember. First thing, it has magnitude. Okay. Now what do I mean by magnitude? Magnitude का मतलब value. Magnitude का मतलब क्या होता है? Value. Right? I can simply write down in bracket. Magnitude means it will have a value. And the second thing the vector will have is it will have a direction. Okay. Just for an example, let's say मैं आपको एक example देता हूँ for vector. What is an example of a vector? If I give you an example relating to physics, then you all know that your force is a vector, right? Force एक तरह का vector होता है. क्यों? Because just for an example, I have this scale in my hand, right? I have this scale in my hand. If I apply force, let's say by my finger, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं लाइक दिस, राइट? आप देख रहे हो फिंगर से मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं? फोर्स. आई एम बेसिकली पुशिंग दिस, राइट? मैं इसको पुश कर रहा हूं मेरी फिंगर से. सो व्हेन यू पुश इट, द फोर्स विल हैव अ वैल्यू, राइट? यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ द फोर्स कैन बी मेजर्ड. लेट्स से फॉर एग्जांपल द फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, राइट? सो आई कैन जस्ट से आई एम पुशिंग दिस स्केल. मैं इस स्केल को पुश कर रहा हूं बाय अ फोर्स इक्वल टू लेट्स से 20 न्यूटन, राइट? मैं इस स्केल को push कर रहा हूं with the help of 20 newtons force, right? 20 newton force, and at the same time I can say this is nothing but the value, right? ये value हो गया, बराबर? ये value हो गया force का. Value in the sense this is nothing but your magnitude. And guys, we all know that ये जो force मैं apply कर रहा हूं, this is towards the right hand side, right? बराबर? इसको मैं right hand side की तरफ धक्का दे रहा हूं, right? I'm pushing it towards the right. देखो फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक बुक थी, ठीक है, एक बुक है बेसिकली. इस बुक को मैं इस जगह से चेंज करना चाहता हूं, तो क्या मैं करूंगा? मैं इसको पुश करूंगा, राइट? बराबर? तो पुश करूंगा तो एक फोर्स आएगा, तो वो फोर्स का एक वैल्यू जिस तरह से मैंने आपको दिखाया. एज वेल एज आप कहोगे सर बुक को राइट हैंड साइड की तरफ धक्का मार रहे, राइट? राइट हैंड साइड की तरफ आई एम पुशिंग इट आउट. सो व्हाट इज दिस राइट हैंड साइड? आई एम पुशिंग इट टुवर्ड्स राइट. आई कैन से आई एम पुशिंग इट towards right. यही फोर्स जो है this is pushing towards right. So what do you mean by this right? Right, left, up, down, they are all directions, right? They are all direction. इसका मतलब क्या होता है? This is nothing but direction. Hence I can say force के पास magnitude है, right? Force एक ऐसी चीज है जिसके पास magnitude है, as well as force के पास direction भी है. Simple, समझ में आया? फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और फोर्स के पास डायरेक्शन भी है. देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर. फोर्स इज अ वेक्टर, राइट? क्यों वेक्टर है? क्योंकि फोर्स के पास एक मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास एक डायरेक्शन भी है. तो जो चीजें जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज योर वेक्टर्स, राइट? दे आर बेसिकली कॉल्ड एज वेक्टर्स. अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट? With an example of force, I have explained to you that force is a vector. Why force is a vector? Because force के पास magnitude भी है और direction भी है, right? Fine. Now guys, how in mathematics your vectors are represented, okay? So in mathematics, vectors can be represented like this. Let's say you have a point A here, you have a point A and you have a point B, okay? Fine. दो points है मेरे पास, एक है point A, दूसरा है point B. मैं एक वेक्टर बनाना चाहता हूं. सो आप कहोगे जस्ट ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, ओके? जस्ट ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, दिस विल बी नाउ योर वेक्टर. ठीक है? तो हम लेट अस से वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी. हम ए टू बी जा रहे हैं. सो आई कैन शो इट बाय एन एरो. वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, राइट? द वेक्टर इज फ्रॉम, आई कैन से वेक्टर इज फ्रॉम ए to B, right? Basically the vector is from A to B. Arrow बता रहा है कि vector A to B है, right? Okay.
सो गाइज हाउ इज दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेड? दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. इसको हम इस तरह से लिखेंगे. दिस इज रिप्रेजेंटेड. इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स वेक्टर. इसका क्या मतलब होता है? वेक्टर ए बी. What, how do you call this? You call this as vector AB. Okay, fine. Guys, remember, ये जो starting point है उसको पहले लिखने का और ending point है उसको बाद में लिखने का, right? This starting point A is called as your starting point or also known as the initial point. This is called as your initial point. पहला जो letter होता है उसको initial point कहते हैं और जो second letter होता है that is called as your terminal point. तो इस वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर का A इनिशियल पॉइंट है और B इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है. फाइन, अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड. वन मोर एग्जांपल. लेट्स से यू हैव अ वेक्टर. योर पॉइंट इज B इज पॉइंट हियर एंड योर पॉइंट A इज हियर. अब ध्यान से सुनो. एरो से रिप्रेजेंट करता हूं. राइट, नाउ यू हैव अ वेक्टर. लेट्स से लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन. So I can just write down vector is from B to A, right? Vector कहां से कहां? B to A. So इसको कैसे represent करोगे? B A vector. इसको कैसे represent करोगे? B A. यहां पर A से B जा रहे थे तो हमने AB लिखा. यहां हम B to A जा रहे थे, so this is called as your B A vector. Understood? Just for an example, you can even change the letters. मैं rough example लेने के लिए letters change कर देता हूं. Let's say this is point P, this is point Q. So now you're moving from P to Q. So I can say vector is from P to Q. It is represented like this. PQ vector. समझ में आया? This is nothing but your PQ vector. I hope this example is clear. So guys, what will be this initial point? The P will be the initial point, right? यहाँ से vector start हो रहा है. The vector जहाँ से start होता है ना, that is called as the initial point, right? So I can say initial point is the point from where the vector starts. Vector starts from this particular point and ये vector end कहां पर हो रहा है? ये vector Q पे end हो रहा है, right? So I can write down Q is the terminal point. Q is the terminal point. तो terminal point कौन सा होता है दोस्तों? जहां पर vector मेरा end होता है. Just for an example, यहां पर vector end हो रहा है जहां पर I can say vector ends. ठीक है? So इस vector की बात करूं PQ, then it is starting from P ending at Q. Okay, so this is nothing but a vector represented by AB like this and this is a vector PQ. Fine. अच्छा. Now guys, what do you mean by a magnitude? आप लोगों ने समझा वेक्टर के पास दो चीजें होती है, राइट? एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है. ओके, सो लेट मी जस्ट रिप्रेजेंट अ वेक्टर. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल जो ऑलरेडी एक और बार लिया था. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, सो लेट्स से यू हैव अ वेक्टर पॉइंट A हियर और पॉइंट B हियर. ओके, देखो दो पॉइंट्स है. वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जस्ट फॉर एन एग्जांपल है 5 सेंटीमीटर. या बेसिकली मैं कहता हूं 5 यूनिट्स. मैं सेंटीमीटर नहीं मेंशन करता. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? सम 5 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, आई एम कंसीडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एज 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट्स ले रहा हूं फॉर द टाइम बिंग. नाउ फ्रेंड्स, अब ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 5. रिमेंबर, आई विल राइट डाउन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B is 5 units. Is 5 units. Okay. Now let us make a vector. अब मैं एक वेक्टर बनाता हूं. दोनों पॉइंट्स तो समझ में आ गए. एक पॉइंट है मेरा A, दूसरा पॉइंट है मेरा पॉइंट B. अब मैं एक वेक्टर बनाता हूं. Let's say you are making a vector like this. So you will tell me, sir, this vector is from A to B, right? बराबर. This is a vector from A to B. So I can write down this is a vector from A to B. A to B को आप कैसा रिप्रेजेंट करोगे? वेक्टर ए बी, राइट? इसको आप रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर ए बी. ए टू बी, ए इनिशियल पॉइंट, बी उसका टर्मिनल पॉइंट. ओके, फाइन. नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर हमारे पास ए बी ये वेक्टर है, राइट? बराबर.
राइट? ऑलवेज रिमेंबर वेक्टर के ऊपर ये एरो बनाना जरूरी है. इफ यू डोंट पुट एन एरो गलत हो जाएगा. ठीक है? सो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर हम दो ऐसी लाइंस बनाते हैं, दिस मीन्स दैट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ओके? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू. एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. It is the distance between the points. What is magnitude? Magnitude is nothing but the distance between the point. Therefore, ये जो vector AB है, उसका magnitude क्या होगा? उसका magnitude will be how much? 5. समझ में आया? This magnitude will be 5. Clear? I hope that is clear. अच्छा. So magnitude, what is basically the magnitude? Magnitude is nothing but, magnitude का मतलब क्या होता है? Distance between the two points. कोई भी दो points के बीच का distance को हम magnitude कहते हैं. Clear? और magnitude को you represent it like this. Now talking about the direction, guys. If I talk about the direction, friends, direction की बात करूं तो you all know that in nature you have four directions, right? North, south, east, west, right? So I can just represent, ऊपर north होता है, नीचे साउथ, then you have east here, then you have west here, right? बराबर? दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सबने देखा है. ओके, सो आई कैन जस्ट से ये वेक्टर A to B है, मतलब दिस वेक्टर इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? डायरेक्शन की बात करो तो यू कैन जस्ट मेंशन दैट द वेक्टर इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड. मैंने डायरेक्शन भी दिखा दिया है और मैग्नीट्यूड भी दिखा दिया, राइट? सबसे पहले मैग्नीट्यूड समझाया. मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. एंड डायरेक्शन समझाया, इट इज फ्रॉम west to east, right? This is west, this is east, so it is from A to B, yani it is from west to east, right? So these two concepts are clear. Now guys, let me tell you one thing, कि कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर आप देख रहे हो AB, राइट? कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट विल नेवर बी नेगेटिव. Let's write a note that the magnitude of any vector will never be negative. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी कैन नॉट बी नेगेटिव. मतलब इट कैन नॉट बी लेस देन जीरो. जो भी नंबर्स है इस तरह से केस ए बी लेस देन जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? आई कैन राइट डाउन दिस इज नॉट पॉसिबल. किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड लेस देन किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन जीरो पॉसिबल नहीं हो सकता. रिमेंबर दिस, ऑलवेज इट विल बी ईदर इट कैन बी जीरो और इट कैन बी मोर देन जीरो. लेस देन जीरो इज नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर वन मोर थिंग, कि एक जो वेक्टर है ना, अगर उसको दो पॉइंट्स में लिखो तो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लेटर ए स्टैंड्स फॉर पॉइंट ए, कैपिटल लेटर बी स्टैंड्स फॉर पॉइंट बी, राइट? पर कभी कभी हम वेक्टर को है ना स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्मॉल लेटर से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज लाइक दिस, स्मॉल लेटर ए फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो आई कैन जस्ट से ये वेक्टर फ्रॉम ए बी, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट योर स्मॉल ए. समझ में आया? स्मॉल लेटर से, एक स्मॉल लेटर से आप रिप्रेजेंट करोगे. या तो वेक्टर को, ध्यान से सुनो, या तो वेक्टर को दो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करो. ठीक है, दो तरीके, देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स. या तो दो कैपिटल लेटर्स से वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, या तो वन स्मॉल लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, चलेगा. ओके, फाइन. सो यू कैन इवन से मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी यू कैन इवन राइट डाउन स्मॉल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, राइट? फाइन, बराबर? समझ में आया? तो या तो दो कैपिटल लेटर, either two capital letters or either one small letter, one in the same thing. Okay, fine. So I hope